Recently, the Har Ghar Raktata event was organized by the Federation of Blood Donor Organizations in collaboration with National Institute of Biologicals on the occasion of World Blood Donor Day 2024. It took place at the prestigious NIB in Noida. This significant three-day national workshop held aimed at creating a robust awareness about voluntary blood donation, addressing critical issues related to blood safety, and enhancing blood donation practices across India. The event was a grand success marked by the participation of numerous dignitaries, representation from 24 states across India, and an atmosphere brimming with enthusiasm, collaboration, and innovation. Over the 3 days of workshop was dedicated to practical aspects and future directions for voluntary blood donation. Interactive session on organizing successful blood donation camp led by experienced organizers who shared their strategies for motivating donors, ensuring smooth operations and maximizing donor retention. This session was particularly valuable for new organizers and those looking to improve their existing practices. A significant part of the agenda was dedicated to preventing hemoglobinopathies through public health initiatives and policy interventions. The workshop also featured a special segment on innovative strategies to enhance voluntary blood donation, including the use of digital media and technology. Speakers demonstrated how social media platforms, mobile apps, and online campaigns can be leveraged to reach a broader audience, engage young donors, and streamline the donation process. The case studies of successful digital campaigns were presented showcasing their impact on donor recruitment and retention. In conclusion, the Har Ghar Raktata workshop was a resounding success, marking a significant milestone in the journey towards achieving 100% voluntary blood donation in India. The event not only celebrated the spirit of giving but also reinforced the importance of collective action and innovation in addressing the challenges of blood donation. As we move forward, the lesson learned and connections made during this workshop will continue to inspire and drive efforts to ensure that every patient in India has access to safe and adequate blood. आज विश्व रक्तदान दिवस है और इस अवसर पर एफपीडीओआई ने हमारे साथ कोलैबोरेट करके इस वेन्यू को चुना। इसका हम अपना सौभाग्य मानते हैं और धन्यवाद देते हैं एफपीडीओआई का। आप ये बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हो। रक्तदान मात्र रक्तदान नहीं है, वो जीवन दान है, जो कि कई बीमारियों में रेगुलरली लगता है, अदरवाइज एक्सीडेंट वगैरह में वन टाइम लगता है। और आप सब लोग बहुत महान हो मेरे हिसाब से, आप रक्तदान तो करते ही हो। कई लोगों नमश्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आपका स्वागत करते हुए generosity and the promise of a healthier and a more resilient community. Once again, a heartfelt welcome and as well as thank you to all of you for your unwavering support. Thank you so much. Is World Blood Donors Day और इस ब्लड डोनर्स डे के लिए उपलक्ष्य में हम लोग सम्मिलित हुए हैं यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस बिल्डअप करने के लिए, खासकर न्यू जनरेशन्स में एक ब्लड डोनेशन के बारे में एक अवेयरनेस लाना है हमें, क्योंकि दैट इज़ द ओनली प्रोडक्ट विच कैनॉट बी मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड आवर बॉडी। हम लोग आजकल ज़्यादातर खाते हैं मशीन प्रोडक्ट्स, पैकेट फूड, पैकेज्ड वाटर, बट ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर समय ज़रूरत होती है, लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एक ह्यूमन बॉडी है। और इस ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखना और हर तरह से आउटसाइड इन्फ्लुएंस से रक्षा करना उसकी,
उसकी हर बॉडी की जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुझे परेशानी हुई 2 चीज़ों से, एक था कुत्तों से थोड़ा दूर रहना है हमें, क्योंकि उनके संपर्क में आने से जो भी हमें कुछ दवाइयाँ लेनी होती है, इंजेक्शन्स लेने होते हैं, उससे ब्लड हम डोनेट नहीं कर सकते। इवन टू आवर ओन डियर एंड नियर वंस वी आर डिबार्ड फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड। सेकेंडली, आजकल जो नया फैशन हुआ है टैटूज़ का, उससे हम आउटसाइड जो बैक्टीरियाज या और कुछ भी हो, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की संभावना होती है, वायरसेस के वगैरह। इसलिए ब्लड डोनेशन से हमें बाहर किया जाता है। तो ये 2 चीज़ों से आप बचिए खासकर, और अपने आप को हेल्दी रखिए। ऑक्सीजन जितना ज़्यादा लें, सुबह उठ कर के जॉगिंग करिए, योगा करिए और अपने आप को हेल्दी रखिए, ताकि कि आप दूसरों की मदद कर सकें। कब आपकी मदद किसी को लगे बोल नहीं सकते। बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। ब्लड इज़ द ओनली थिंग वी कैन डोनेट। हम पैसा बहुत दे सकते हैं, अपनी जगह दे सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को अपना रक्त देते हैं तो सामने वाला, आपको पता है या नहीं पता है, ही ब्लेसेस यू इन इन्फिनिट वे। वो जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ ही रहेगा। तो मैं न्यू जनरेशन को ये कहूँगा कि टेक दोज ब्लेसिंग्स फ्रॉम अदर्स, वो फ्रॉम द अननोन पीपल। यू आर डोनेटिंग ब्लड to the unknown person, and that unknown person blesses you infinitely, and that blessing is will stay you forever in infinity. Thanks a lot. उन्होंने मुझे रक्तदान किसी से कैसे करवाए, क्योंकि मैंने कितनी बार रक्तदान किया वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड हूँ। मुझे पता है कि रक्तदान करना है, ब्लड डोनेशन करना है, लेकिन मेरा जो काम है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से रक्तदान करवाया जाए। तो मैं इसके लिए मैं खुद का बस जल्दी से बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। रक्तदान ज्यादा से ज्यादा लोग करें, ब्लड डोनेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, उसके लिए मैं बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी तोड़ती हूँ और मैं वीडियोस भी बनाती हूँ अवेयरनेस के लिए। और जैसे रेड क्रॉस है वो मुझे इतना सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं उसकी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइजर भी हूँ, और उसके लिए मैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज भी करती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि this is our hospital, 300 bedded NABH aggregated super specialty hospital near Kolkata airport. Some pictures of our indoor and outdoor blood donation. डॉक्टर साहब, आप 3 दिन से जो ब्लड के ऊपर मोटिवेशन हो रहा है नोएडा में, तो आप युवकों के लिए क्या बोलना चाहिए और सरकार के लिए क्या बोलना चाहिए? यहाँ पर बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स ने अपने बहुत विचार रखे जो दिल को छू लेने वाले थे। मेरी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट यहाँ पर रही है, हमारे हैदराबाद में विशेषकर महिला ब्लड डोनर्स नहीं के बराबर है। हम कितना भी मोटिवेट करते हैं तो हमारे पास महिला ब्लड डोनर्स नहीं आते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भविष्य में हम लोग हैदराबाद में भी महिला ब्लड डोनर्स को मोटिवेट करें, और यहाँ से हम जो सीख कर जा रहे हैं उससे हम एक लेसन लें कि महिलाएं भी बराबर की भागीदार हो सकती हैं ब्लड डोनेशन में। और मेरी सरकार से ये विनती है कि ब्लड डोनेशन को बहुत अच्छे स्तर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करें, ताकि भारत कभी भी ब्लड के लिए अछूता न रहे। जैसे विश्व की कई देश ऐसे हैं जहां पर ब्लड हमेशा सरप्लस रहता है, हमारा भारत हमेशा ब्लड के लिए तरसता रहता है। मैं सभी को मोटिवेट करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन देकर इस भारत को रक्त की कमी से दूर करें। विशेषकर
18 से 25-30 साल के वयस्कों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग अपना रक्तदान हर 3 महीने में देते रहें। इससे अगर वो फिट हैं तो कभी भी कोई कमजोरी नहीं होती, इससे उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, रादर उनका स्वास्थ्य और बेहतर रहेगा। आपका डेजिग्नेशन? मैं चंद्रकांत अग्रवाल हैदराबाद से हूँ। आई एम प्रेसिडेंट थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी हैदराबाद, कमला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।